Hello friends, our today's session is typically dedicated towards the ASRB NET examination in the discipline of Agri-Business Management, discipline number 46. और उसी के तहत आज का हमारा सेशन है फॉर द नेट एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट एंड हाउ टू क्लियर द नेट एग्जामिनेशंस. वेलकम फ्रेंड्स, आई एम रामेश्वर एंड हियर वी टॉक अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स बाय विच we are able to crack the NET examinations in the discipline of Agri-Business Management for the ASRB NET. Hello friends, आज हम देखेंगे the most important topic of how to crack NET ASRB for the stream of Agriculture Business Management. जी हाँ, आज हम बात करेंगे ABM डिसिप्लिन आपको क्रैक करना है तो what are the different things which are required or which are the requisite. सबसे पहले हम आज बात करेंगे review of the syllabus, followed by that important strategy that could act as a winning strategy for to crack the ABM NET examinations, then certain tips that you have to follow because यहाँ पे ध्यान में रखिए the examination will be there in the next week, so उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है. and finally certain questions perspective कि किस पॉइंट पे या किस टॉपिक पे which type of questions could be there in the examinations, इस बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले देखिए सिलेबस का रिव्यू करेंगे. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस देयर आर 6 डिफरेंट हेड्स, 6 हेड्स है. सबसे पहला है हमारा जनरल मैनेजमेंट, सेकंड बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट, फॉलोड बाय दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, एंड फाइनली quantitative techniques and strategic business management and entrepreneurship. So these are the 6 important heads. Okay, तो अब हम हर एक के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट in which there are different number of things. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है इसमें functions of management. जी हाँ, started from the who describe the functions till the time of who describe the different types of objectives and principles. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या सबसे बड़ी बात है, who describes the different types of principles. Maybe here Fayol is the scientist. Okay, apart from that Peter Drucker is the scientist. So who describe which things? Apart from that sequential manner of all functions of management. मतलब start कहाँ से होता है हमारा planning में. So what is the planning? Nothing but functions, or we could say that is the base of planning in which courses of actions are designed to achieve the set of objective. So that is the planning. Second is हमारा है organizing. Here we are different types of delegation of activities. So इस हिसाब से planning, organizing, staffing, directing, scheduling. So these are the 5 important functions. ठीक है, इसके बाद MBO, management by objective. The scientist who first of all coined the term MBO is Peter Drucker. ये भी क्वेश्चन यहाँ पे रह सकते हैं. ठीक है, then followed by that leadership styles. यहाँ पे देखिए different types of leadership styles. Who prescribed which type of leadership? There are different types of leadership. Maybe the autocratic leader, maybe the laissez leader, like this way. Apart from that organization. अब यहाँ पे देखिए in terms of organization, maybe the formal, maybe the informal. Here keep in mind informal organization is called as grapevine organization. Then certain organizational conflicts while we actually performing the role. इसके हिसाब से यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिर सकता है, दैट इज द इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और हम कह सकते हैं कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट. ये भी यहाँ पे क्वेश्चन गिर सकता है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्मल इन्फॉर्मल तो हमने बता दिया है, पर इसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम द एक्चुअल वर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, hybrid organization, different types. Then next one is the HRM. ध्यान में रखिए मेजॉरिटी पार्ट आपका HRM पे रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसमें जिस पार्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन रहेगा ही मिनिमम, एंड द पार्ट इज नथिंग बट योर जॉब एनालिसिस. ठीक है, इसमें भी 2 पॉइंट रहेंगे वापस. व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, एंड सेकंड वन जॉब क्वालिफिकेशन. ओके, when we say which type of nature of job, so that is nothing but the job specification. And when we say the different skills required in the individual, that is the qualification point of view. तो ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी in terms of job analysis. ठीक है, recruitment and selection. फ्रेंड्स देखिए when जब हम कोई ad देते हैं so that more people could encourage to just apply for the position. ये हो गया हमारा रिक्रूटमेंट. एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट, ये हो गया हमारा सिलेक्शन. फाइन. ट्रेनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर देयर. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वी कुड से वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, like different types of ITI institutes. So these are there.
इंडक्शन, ये भी यहाँ पे एक पॉइंट है। और इसके अलावा IR मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज अगेन इंपॉर्टेंट टू यू, द लॉज विच आर रिलेटेड टू द IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हिसाब से जितने लॉ है, सो हर एक के ईयर्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मैच्योरिटी एक्ट, एम्प्लॉय वेजेस एक्ट, इसके आपको ईयर्स देखने पड़ेंगे। एंड फाइनली वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देयर आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे हम कह सकते हैं ट्रेडिशनली देयर आर फ्यू वन, बट अब बहुत बढ़ गए, लाइक 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो इनको आपको सबको अच्छे से देखना होगा। इसके अलावा द चांसेस आर दैट केस एनालिसिस और केस स्टडी कुड बी देयर फॉर 1 or 2 क्वेश्चंस। फाइन, अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक, दैट इज बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगा, यहाँ पे दिक्कत यह होती है कि दो स्टूडेंट्स हु हैव फाइनेंस देयर एज देयर स्पेशलाइजेशन, उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, बट देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द ABM हु हैव फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन, नॉट मोर देन 5 to 10%। सो दैट्स व्हाई दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको फाइनेंस में दो चीजें हैं। क्या है? फर्स्ट कि यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, एंड सेकंड थिंग आर रिलेटेड टू द बेसिक कंसेप्ट्स। तो आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके बस की अगर बात नहीं है, फिर भी आपको कंसेप्ट्स में मार्क्स मिल जाएंगे। फाइन, सो अकाउंटिंग में दो चीजें आती है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अकाउंटिंग? सो एनीथिंग विच इज इन टर्म्स ऑफ द कैश, दैट कुड बी इन द अकाउंटिंग। ठीक है, सो इसमें इंटरप्रिटेशन सब चीजें आ जाएगी, बट देयर आर टू वेज। वन इज द कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड इज द कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक मीनिंग ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। Then second thing is the financial statements. So in terms of financial statement, आपको यहाँ पे basically बहुत statement है, उसमें से आपको करना क्या है? Typically you have to do I think 2 to 3 statements आपको ज़्यादा important है। One is the income statements, okay? Then followed by that profit and loss account and balance sheet. Okay, so ये तीनों पे आपको ज़्यादा questions गिरेंगे। At least 1 to 2 questions are there from this concern. यहाँ पे ध्यान में रखिए, when we say profit and loss, so this statement is prepared for a duration 6 month year, balance sheet prepared for the yearly basis। ठीक है, the next one is the ratios। अब यहाँ पे बहुत ratios है, like NPV net present value, CVP cost benefit ratio, ARR average revenue ratio, internal rate of return, benefit to cost B/C, BEP break even point। every year these are the questions। so इसमें आप ध्यान में रखिए, rather than directly go to the formula, अगर आपको वो बेसिक्स भी पता चले, दैट व्हाट कुड बी यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म, व्हाट कुड बी यूजफुल फॉर द लॉन्ग रन, कम बजट के लिए, कम टाइम के लिए कौन से यूज करते हैं, वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, CVP इज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। फाइन, देन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये थोड़ा सा इजी है। इसमें आप व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ योर लोन, मे बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो इसका एग्जैक्टली ड्यूरेशन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स, ये आपको चाहिए यहाँ पे। क्रेडिट, अब यहाँ पे देखिए, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट देर इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंडर देर आर 3 R's आर देयर। ठीक है, अब ये 3 R's कौन कौन से इसमें? सबसे पहले आपका आ गया रिपेमेंट कैपेसिटी। ठीक है, व्हाट इज द रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ यू, अकॉर्डिंग टू दैट बैंक प्रोवाइड यू द लोन। ठीक है, रिपेमेंट कैपेसिटी आ गया। देन आपका आ गया रिस्क बियरिंग एबिलिटी, थर्ड वन रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट R's। इसके हिसाब से देयर आर अगेन 5 C's स्टार्टेड फ्रॉम द कैरेक्टर, उनका एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या है। देन 7 P's स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन, 7 P's ऑफ द क्रेडिट, इस पे भी हर साल एक क्वेश्चन तो 100% रहता है। देन एग्रीकल्चर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मे बी सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एट स्टेट, सम ऑफ दैट द नेशनल लेवल, कोऑपरेटिव्स एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इस बारे में आपको देखना है। देन थर्ड टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इसमें देखिए, फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट STP, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग, इस पे हर साल एटलीस्ट देयर आर 3 to 4 क्वेश्चंस आर देयर ऑन द STP। मेजर प्रॉब्लम इज ऑन द मार्केटिंग कंसेप्ट्स, CBB कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, एग्जैक्टली मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस क्या है, इस पे क्वेश्चन रहता है। देन हाउ टू टारगेट द मार्केट विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, देन मार्केट स्ट्रक्चर, अब इस मार्केट स्ट्रक्चर में हम कह सकते हैं मे बी परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 12 डायमेंशंस ऑफ मार्केट। मार्केट के जो 12 डायमेंशंस है, जिस हिसाब से हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं, उसके आप बेसिस देख लो। ये आचार्य के बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, इस पे हर साल 1-2 क्वेश्चंस गिरते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इज द सेक्युलर मार्केट इज व्हाट टाइप ऑफ नेचर, इट इज परमानेंट इन नेचर। ठीक है,
दैट इज द मार्केटिंग मिक्स वन. देन मार्केटिंग फंक्शंस, यहाँ पे भी देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट टू प्रपोज द फंक्शंस. इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थॉमसन्स मार्केटिंग फंक्शंस. ही क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी वे. फाइन. क्लासिफिकेशन. देन मार्केटिंग सरप्लस, इसमें दो चीजें हैं, मार्केटेबल सरप्लस एंड मार्केटेड सरप्लस. ठीक है. व्हाट इज द रिलेशनशिप? व्हाट इज द डिस्ट्रेस सेल? फ्रेंड्स देखिए, नियरली 50% ऑफ द टाइम डिस्ट्रेस सेल पे क्वेश्चन पूछा गया है. सो डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट इज द डिस्ट्रेस सेल. मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया, आप अच्छे से देख लीजिए, इसको लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा. डिस्ट्रेस सेल. ठीक है. जनरली क्या होता है, जब हमारा मार्केटेड सरप्लस ज्यादा हो जाता है देन द मार्केटेबल, सो दैट इज द डिस्ट्रेस सेल. फाइन. Certain challenges for the farmer or for the producing community. PDS, public distribution system policies, that could be a critical type of questions. यहाँ पे आपका MSP, minimum support price, buffer stock, PDS, who proposed the thing, under which commission, that is commission on agricultural cost and price. Procurement exactly क्या होता है, buffer stock, ये सब चीजें यहाँ पे रहेंगी. Apart from that, cooperative marketing. Then fourth topic is the managerial economics and farm management. Now this is again the one of the critical topic. यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा हार्ड है. फर्स्ट थिंग, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई. शॉर्ट में ध्यान में रखिए, लॉ ऑफ डिमांड इज अ निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस, बट लॉ ऑफ सप्लाई इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द quantity demanded and supply of the commodity. Fine. Then production function, यहाँ पे भी जैसे हम कर सकते हैं different types of production function. Three important measures हमारा जन से हो गया, marginal product, total product, average product. ठीक है, उस हिसाब से production function. Then apart from that the laws like law of return to scale. ठीक है, तो वो सब चीजें इसको आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी. Production function पे at least there are 2 questions on the production function every year. Fine. देन नेशनल इनकम, इस पे आपको फॉर्मूला या फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं, जैसे जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नथिंग बट आवर टोटल प्रोडक्शन माइनस आवर डिप्रिसिएशन. मतलब आपका जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट. इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं. देन डीआई इज द डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज द डीआई. इन्फ्लेशन, डेफिनेटली फ्रेंड्स इन्फ्लेशन पे बहुत बार क्वेश्चंस गिरते हैं. अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इन्फ्लेशन पे हर साल एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कुड बी देयर ऑन द इन्फ्लेशन. बिजनेस साइकिल, लाइक वी कुड से देयर आर 4 phases ऑफ द बिजनेस साइकिल. रिकवरी, ट्रफ, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट phases. चारों में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन रहता है. एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एज ऑन वन साइड देयर इज अ कंजम्पशन और वी कुड से हाउसहोल्ड, ऑन अदर साइड देयर इज अ फर्म्स. सो उनका जो एग्जैक्टली सर्कुलर फ्लोशन है उस हिसाब से. देन फार्म मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड डिसीजंस फॉर द फार्म मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगा, व्हेन वी से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिफोर दैट यू हैव टू क्लियर अबाउट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसी के 5 पार्ट्स है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के. माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन नथिंग बट द फार्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स. सो हर एक पे क्वेश्चन रहेगा वहां पे. ठीक है. ओवरव्यू ऑफ लाइव स्टॉक, डेफिनेटली विद कंसर्न टू लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिश, हैचरी, इसमें भी क्वेश्चन रह सकता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फ्रेंड्स एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कुड बी देयर ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है. नथिंग बट अगर हम कहते हैं जनरली क्या होता है इसमें, इफ एनीवन टॉकिंग अबाउट द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो ही हम उसको क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है व्हेन वी से यूनिटरी, ठीक है, जब हम कहते हैं यूनिटरी, सो इट क्लियरली मींस दैट elasticity of demand is equal to 1. But what happen with the perfect inelastic and perfect elastic demand? So ये चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से करनी है. Then followed by that, 5th topic, quantitative techniques. So now it is again one of the important numerical point of view. LPP, nothing but our linear programming problem and the different types of method to solve the problem. Generally 2 methods है, एक हमारी सिंप्लेक्स मेथड है, उस पर ज्यादा क्वेश्चंस गिरते हैं वहां पे. देन अगेन ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसमें कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं. बिलीव मी, लाइक सम ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ यू हैव टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज द आंसर. सो इस पे भी क्वेश्चन रह सकता है. इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, फ्रेंड एवरी ईयर द क्वेश्चन आर देयर ऑन द इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड. ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हम बच सकते हैं ABC एनालिसिस, हमें पता है A is one of the precious item, B are the medium precious item and C
are the less precious item. So definitely according to this ABC is there. Second one is the EOQ, economic order quantity. Friends, every year there is one numerical problem on the EOQ, economic order quantity का हर साल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, वो भी बहुत इजी होता है. सो आप इसका देख लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, एज वी नो द डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, उस हिसाब से भी हमें क्वेश्चन आ सकता है उसमें. नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड सीपीएम, इसको आप कंपैरिजन के हिसाब से देखिए. सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, पर्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. For construction which is using, and for the defense purpose which type of analysis purpose is using, ये आपको यहाँ पे देखना है. Types of research, maybe the explorative research, maybe different types of descriptive research. यहाँ पे आपको at least 1 to 2 questions are there from the research point of view. Measures of central tendency, इसमें कुछ questions बहुत easy होंगे. Mode, mean and your median, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है for the central of measures tendency. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये पॉइंट पे अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स गिरता है तो आई विल डेफिनेटली से दैट आप उसको क्विट कर दो, उसको बिल्कुल अटेंड मत करो. हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखना है. देखिए ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग इफ एरर इज देयर, सो टाइप 1 एरर इज द अल्फा, टाइप 2 एरर इज द बीटा. ये आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है. अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटिकल कंट्रोल एंड डेफिनेटली सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स. तो ये जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यहाँ पे आपको यू डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई मोर वे, ठीक है. आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे करना पड़ेगा. एंड फाइनली द 6th टॉपिक, SBM, स्ट्रेटेजिकल बिजनेस मैनेजमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप. एक्चुअली ये दोनों पहले अलग टॉपिक थे, इसको मर्ज कर दिया है. सो इसमें सबसे बड़ी बात है इंडियन इकोनॉमी, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, इन 3 सेक्टर का. सो करंटली द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर इज 19.9% टू द GDP. ये अभी बढ़ गया है इस साल, ठीक है. पहले ये 15 से 16% में था. सो अभी ये कुल मिला के कितना है अभी 19.9%. रिफॉर्मेशन मेजर्स, टिपिकली LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. इन विच अगेन इंटरनल एनालिसिस में क्या क्या आता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस. एक्सटर्नल में क्या आता है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स. इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. देखिए यहाँ पे LPG पे डेफिनेटली 1 क्वेश्चन इज देयर, SWOT पे भी एक क्वेश्चन रहेगा. एग्री बिजनेस, बेसिक थिंग, ये आपको थोड़ा सा इजी है. बेसिक थिंग, कोरिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, दैट इज द बिजनेस और एग्री बिजनेस कंसेप्ट. सर्टन लिंकेजेस जब हम रुक करते हैं हमारे प्रोडक्शन के प्रति या हमारे रॉ मटेरियल के प्रति, सो दैट इज द बैकवर्ड लिंकेज. व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द or when we forward towards the distribution channel, so that is the forward linkage. Fine. Certain current trends or fashions going on in the market. Then international trade, इसमें WTO पे हर साल at least 2 questions are there. One question is one of the simple question like the different types of rounds, IPR or the headquarter related or the head office related questions. And the second question could be like different types of policies, maybe the amber box policies, which is a trade distorting one. Fine. SCA, sustainable competitive advantage, and certain case studies could be there. Then strategic business management में इसमें क्या रहेगा, there are different, हम कह सकते हैं कि there is a one of the table of SBM का अच्छे से टेबल है कि how to solve the SBM. तो इसमें क्या है, 3 चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी, देन इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी एंड फाइनली इवैल्यूएशन ऑफ द स्ट्रेटेजी. तो एग्जैक्टली व्हाट आर द थिंग्स विच आर देयर इन द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विजन, मिशन, ये पार्ट कहाँ पे है, हमारे फॉर्मुलेशन में ये चीजें पूछी जाती. SWOT एनालिसिस कहाँ पे आता है, इट कुड बी इन द इम्प्लीमेंटेशन, ये भी चीजें आएंगी. IPM एनालिसिस भी यहाँ पे आता है. यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी भी पूछी जाएंगी लाइक cow structure is important, under which stage. So these are some of the important one. And finally entrepreneurship. फ्रेंड्स, दो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया है, बट यस एग्जामिनेशन में आपके इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रह सकते हैं. सर्टन ट्रेड्स, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे भी क्वेश्चंस आज के कंडीशन में रह सकता है. देन सर्टन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंटरप्रेन्योर, मे बी द इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर और इवन कॉम्पिटिटिव फैक्टर, गवर्नमेंट एंड फैसिलिटेटिव फैक्टर. देन एनवायरमेंट एंड सर्टन प्रॉब्लम्स. ओके, व्हाट इज द फोकल पॉइंट? सो आपके 3 फोकल पॉइंट रहने चाहिए फॉर सॉल्विंग द एग्जामिनेशन. फर्स्ट वन, यू हैव टू जस्ट कैरी ऑन द रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज प्रपोज्ड बाय द फेयल, ये हर साल पूछा गया क्वेश्चन है. उसके अलावा MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सो दैट कुड बी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे से देखना है. देन सेकंड थिंग, न्यूमेरिकल्स
एंड रेशियो एनालिसिस पे हर साल देर आर एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट. इफ यू आर वेरी क्लियर टू सॉल्व द क्वेश्चन तभी आप उनको चैलेंज कीजिए, अदरवाइज यू हैव टू क्विट इट. डेफिनेटली अगर आपको नहीं आता है तो आप क्विट कर दीजिए, बिकॉज देर इज अ नेगेटिव. फाइन. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हर साल देर इज 1 न्यूमेरिकल, तो वो आप अच्छे से अटेंड कर लीजिए. जिस पे हर साल आते हैं जो इजी है वो हमें नहीं छोड़ना है, उस पे हमें स्कोर करना है. फाइन. HRM क्वेश्चंस एवरी ईयर, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इस पे क्वेश्चंस रहना ही है. इवन मोटिवेशन, actually motivation पे at least 1 to 2 questions are there from the motivation point of view. Who proposed the theory? Herzberg theory, two factor theory. हमें इसका पॉइंट आना ही चाहिए. Then Mackland need hierarchy theories, like this way. These are the most important one. Room's expectancy theory, like this way. Okay, so these are some of the reference material. देखिए इसमें सबसे बड़ी बुक है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग आचार्य. फ्रेंड्स अभी आपके पास टाइम कम है. आई विल डेफिनेटली प्रीफर जस्ट 1 to 2 बुक्स. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया आप अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली मोर एंड मोर क्वेश्चंस इसी में आएंगे. आचार्य एंड अग्रवाल की बुक है, बहुत मस्त बुक है ये. पहले इसकी 4th एडिशन थी, अभी 5th एडिशन भी इसकी आ चुकी है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया. इसके अलावा मेरा खुद का भी एक बुक है, कोऑपरेशन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, इस पे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. फाइन. अब हम बात करेंगे सम ऑफ द सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द इंपॉर्टेंट टिप्स. फर्स्ट थिंग, मैनेजमेंट में आप अच्छे से देख लीजिए फंक्शंस, उनकी सीक्वेंस एंड टिपिकल साइंटिस्ट हु प्रपोज द थिंग, दैट्स इट. HRM रोल एंड ऑब्जेक्टिव, बिकॉज एवरी ईयर जैसा ग्रीवेंसेस क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया है, लाइक दिस वे. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, देखिए अब इस पे आप जितना कर सकते हैं आप पे डिपेंड है, पर इस पे ज़्यादा टाइम आपको जाया नहीं करना है. जो आपके पास टाइम बचा है उसके अलावा वी हैव टू पे द टाइम ऑन द सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसमें भी एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी पे एक आधा क्वेश्चन गिर सकता है या नॉन प्रोबेबिलिटी पे, जैसे कोटा सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द नॉन पर्पजिव सैम्पलिंग. फाइन. और आवर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग एंड प्राइसिंग मेथड्स, साइकोलॉजिकल, पेनिट्रेशन एंड द मार्केट स्कीमिंग, ये तीनों आप चीजें देखिए. हर साल इसमें से 2 पे तो क्वेश्चन रहता ही रहते हैं. मार्केटिंग में इस पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन है. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's, पीपल, फिजिकल प्रोसेस, देन ये 4 P बन गए हमारे 7 P. ठीक है. MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड WTO, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऑन द WTO. सो डेफिनेटली ये हमें देखना है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे हमें देखना है परफेक्टली इनइलास्टिक. इसका मतलब क्या होता है, नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट, demand remains same. Perfect example is nothing but our water or different types of essential commodity, और उससे simple example हमारा है salt. When E is equal to 0, so that is nothing but the elasticity of demand. Again SBM chart, जैसे हमने बताया कि what could be the things including that our strategy formulation, implementation and evaluation, उस हिसाब से. And finally keep in mind the most important thing that negative is there, 1/3 negative है हमारी. सो हमें ये बात मैंने मत सोचिए कि हमें व्हाट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व. पहले जज कीजिए व्हाट इज द टाइप ऑफ पेपर एंड देन गो फॉर इट. ओके. और इसके अलावा फोकस ऑन हाउ यू एनालाइज द क्वेश्चंस, नॉट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. आप कितना सॉल्व कर पाते हो ये बड़ी बात नहीं है, हाउ इज योर एक्यूरेसी लेवल, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव इज 1/3, दैट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई आई मस्ट सजेस्ट दैट, मैं यहाँ पे कहूंगा द क्वेश्चन इज देयर, what amount of questions we have to actually attempt in the examination. तो मैं आपको प्रीफर करूंगा 110 के ऊपर आप सीरियसली मत जाओ. इफ सपोज द पेपर इज सम ऑफ द वेरी इजी, बहुत इजी पेपर है तो ही आप उसको अटेंड करने जाओ 110 के ऊपर. उसके अलावा 100 से 110 इज द परफेक्ट वन. अगर न्यूमेरिकल्स कम आते हैं तो आप 110 के ऊपर जा सकते हो, मैक्सिमम 120, उसके ऊपर मत जाओ. अगर बहुत ही ईजी है तो ही आप जा सकते हो. मैं वापस कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे 1/3 इज द निगेटिव, और उसके अलावा आपको वो एग्जाम क्रैक करनी है विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक टुडे सेशन इज डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू. इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कुड कमेंट मी इन द टेक्स्ट सेशन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर द सेम. और यहाँ पे मैं कहूँगा दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हिंट्स टू यू दैट हाउ यू कुड गो अहेड विथ कंसर्न टू द एग्जामिनेशंस. अगर आपको लगता है कि if you need any more help related to the 6th topic you would definitely comment me in the text session. मैं ट्राई करूंगा कि definitely some of the important multiple choice questions मैं आपको दे सकूं so that they could be helpful to you in the examinations. So stay tuned for the next session. Till then, thank you.